Good morning, everyone. I'll be starting with my case presentation. So, so this is a case of 26-year-old male who is a resident of Jharkhand, farmer by occupation, married since 6 years with two children, no other comorbidities, no major surgeries in the past, no history of pulmonary coughs. He presented with complaints of abdominal lump since last 6 months and abdominal pain since last 1 month. So he was apparently all right 6 months back when he noticed a swelling in the mid-abdomen, which was about a lemon size 6 months back, which slowly progressed to the present size of an apple. The swelling was not associated with any pain or any change in size in lying down or standing position. The swelling was hard, non-reducible in character, with no aggravating or relieving factors. 1 month back, he experienced slight dull aching abdominal pain, which he felt to be more related to be more on exertion and which was relieved on rest. He had taken some analgesics for the pain, and the pain used to subside with analgesics, and the pain was localized in the area of swelling itself. No history, patient does not give any history of any alteration of bowel habits, no diarrhea, no constipation, no history of any melena, hematochezia, no history of any yellowish discoloration of eyes, no history of any fever, no history of loss of weight, no history of night sweats, no history of any obvious trauma to abdomen, no history of any hematuria, dysuria, pyuria, no history of any other swelling at any other site, no history of any cough, expectoration, or breathlessness, no history of hematemesis, fullness of stomach, reduced appetite, no history of any abdominal distension or pedal edema. In personal history, patient is a bladder bowel habits are normal, sleep is normal. He's a smoker since last 8 years with 1 pack of BD cigarette, BD daily, and a gutka chewer since last 8 years. No significant family history and treatment history. He underwent biopsy of the abdominal mass at local pace and was referred here. So to summarize, this is the case of a 26-year-old male with abdominal lump and of 6 months duration, which is slowly progressing in size, associated with dull aching abdominal pain since last 1 month, and no other GI with no other gastrointestinal complaints. So at this point, I'd like to put DDs in the form of benign masses or malignant masses. In benign malignancies, in benign mass, it could be cystic mass, it could be a mesenteric cyst or a pancreatic pseudocyst. However, there is no history of any GI complaints, loss of appetite, vomiting. It could be a simple hernia which could be present, but there is no history of any reducibility or any increased pain at that site, apart from the last 1 month. It could be an appendicular mass, which, but there is no history of any appendicitis. He would have had a history of appendicitis, which later formed of an abscess or abscess sort of swelling, which presented slowly without any history of any other symptoms. It could be a lipoma, it could be a hepatic adenoma. In malignant causes, I'd like to put my DDs as yes, sir. यार देखो नॉर्मली तो ना ये तो थोड़ी ठीक ही क्या है, बट सूडोसिस्टोप पैंक्रियास नॉर्मली पैंक्रियाटाइटिस के अटैक के बाद होती है. एपेंडिकुलर मास आल्सो विल बी आफ्टर ये. सो दोज एक्चुअली आर नॉट ये. और क्या क्या बिनाइन में देना चाहोगे? It could be even left lobe of liver enlargement can present as an abdominal lump which patient feels as क्यों नहीं देना चाहते यार? सिंपल सी organomegaly. Yes sir, organomegaly could be present normal. कोई भी काला आजार मलेरिया इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है ना. Yes, तो स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, which I would actually in a 26-year-old male put way ahead. वो कहाँ से बताया तुमने? आ रहा है झारखंड से, आ रहा है बताया ना? झारखंड से. I would have placed more ahead than pseudocystop, because pseudocystop पैंक्रियास अचानक एक दिन में नहीं होती. पैंक्रियाटाइटिस की रिकरेंट एपिसोड्स की हिस्ट्री होगी, एपेंडिकुलर मास के लिए भी हिस्ट्री होगी, लाइपोमा का ये होना, हर्निएशन के लिए भी नॉर्मली एक 26 ईयर मेल में herniation हो भी, abdominal herniation होना is a rare ना. Very rare. There has to be history of something ना. He is not an elderly or a multi para or a gravida जिसका abdominal surgeries हुई है या abdomen lax हुआ है, उसमें से हो गया ना. Yes sir. Okay, ठीक है. और ठीक है, तो ये हो गए. तो रियलिस्टिकली इसमें तो मैं, अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैं तो एक ऑर्गेनोमेगाली ही रखता है इसमें, जो डिफरेंशियल रहता, मे बी स्प्लीन, मे बी लिवर. ठीक है. और
रीनल कॉजेस हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह होने का भी है चांसेस, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बताओ। Moving to general examination. मैलिग्नेंट कॉजेस भी तो Okay. बताओ। Malignant causes which can be present in this patient is, one is lymphoma, considering his age. Metastasis from any GI malignancy could be one of the cause. Sarcomas can present as abdominal masses. Desmoid tumors can present as abdominal masses. Germ cell tumor with abdominal mets can present as abdominal masses. So these would be the DD that I would like to put. एग्जाम में देखो ना, ये इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ थिंकिंग अबाउट इट प्रीतिश। ठीक है, तो एचसीसी या फिर लीवर के मेट्स होने का चांस इन द 26-year-old काफी कम है ना। राइट, एचसीसी नहीं। हाँ, मतलब एचसीसी या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी इन द लीवर कह रहा हूँ मैं। इवन सेकेंडरी इन द लीवर फ्रॉम ये तुम्हारा कोई भी हिस्ट्री नहीं था जो जीआई कंप्लेंट्स को सजेस्ट कर रहा था। नो सर। ओके, तो दैट ऑप्शन शुड कम बिलो। ओके, तो व्हाट यू आर हैविंग इज अ पेशेंट जो स्लोली जिसका एब्डोमिनल मास बढ़ते हुए जा रहा है। स्लो भी नहीं कहूंगा मैं, गए 6 महीने से तकलीफ है, उसको अभी नोटिस हुआ है। ओके, सो इट कैन अगेन बी अ स्प्लीन, कोई भी एमपीएन हो सकता है, माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म। इट कैन वेरी वेल बी एन आरसीसी, बट फिर से एमपीएन होने का और आरसीसी होने का एज नहीं है। फिर इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम द रेट्रोपेरिटोनियल रीजन ना, इट कैन बी रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स व्हिच मे बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग लाइक जर्म सेल ट्यूमर से प्राइमरी हो, या लिम्फोमा हो, या फिर रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा हो। फिर इसमें लेकिन एज नहीं है, तो एज के हिसाब से यहाँ पे रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फोमा होने का या रेट्रोपेरिटोनियल सेकेंडरीज फ्रॉम जर्म सेल ट्यूमर होने का चांस बड़ा हाई हो जाता है। ओके, फिर दूसरा आरसीसी होने का चांस कम है बिकॉज ऑफ एज। आरसीसी विल प्रेजेंट ओनली इन द 5th एंड द 6th डिकेड। सो रियलिस्टिकली जब तुम ऐसे इस उम्र के लोगों को देखते हो जो 26-27 है, हियर यू शुड, तुम्हारे दिमाग में एक स्प्लीनोमेगाली होना चाहिए जो आ सकता है। ओके, मे बी बिनाइन और मैलिग्नेंट कॉजेस के साथ, एंड यू मे हैव दिस रेट्रोपेरिटोनियल lymph nodes which have रेट्रोपेरिटोनियल lymph nodes, और रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा भी एज ग्रुप में प्रेजेंट नहीं करता है। ओके, 26 या 28 है ना, वो भी एल्डरली का है। सो इट वुड बी रेट्रोपेरिटोनियल lymph nodes which may have got enlarged with something more। ठीक है, और कोई जैसे तुमने डेस्मोइड ट्यूमर बोला था, वो इसके लिए फिर भी ठीक है। डेस्मोइड ट्यूमर आता है 3rd डेकेड और 4th डेकेड में। ओके, सो दैट आल्सो रियलिस्टिकली स्पीकिंग तुम्हारा थोड़ा सा, मैं अगर होता एग्जाम दे रहा था तो मैं इसमें रेट्रोपेरिटोनियल कुछ होने का चांसेस सेकेंडरीज और या प्राइमरी, मतलब लिम्फोमा ये ऊपर रखता, उसके बाद डेस्मोइड रखता, उसके बाद बाकी सारे देता। ठीक है, राइट। और सी एग्जाम में भी जब देते हो ना, तो एक अच्छा तरीका होता है, दिस इज व्हाट आई डिड व्हेन आई वाज गोइंग एग्जाम्स। जब भी कोई भी ट्यूमर पढ़ो और या कोई भी मैंने, प्लीज रीड द एज ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, एज ऑफ, तो तुम्हारा ऐसे एग्जाम, और अच्छा तरीका भी होता है जब तुम ये होते हो, इफ यू बीन 108, मैं तुम्हें बता दूंगा, अगर यंग लड़का या लड़की आते हैं ओपीडी में, इट कैन बी नेजोफेरिंग और इट कैन बी सलाइवरी ग्लैंड। तो यू मस्ट नो कि कौन से एज ग्रुप में क्या प्रेजेंटेशन होते हैं। रेयर वाले आएंगे ही आएंगे, तुम्हें यंग ओरल कैंसर भी मिल जाएंगे, एल्डरली नेजोफेरिंग्स भी मिल जाएंगे, बट यू मस्ट नो दैट मोस्ट ऑफ द पेशेंट इस बीमारी में इस डेकेड में प्रेजेंट करते हैं, इस बीमारी में इस डेकेड में प्रेजेंट करते हैं। ओके, दैट हेल्प्स अ लॉट इन ड्यूरिंग योर क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। देखो आज तो हर कोई पेट स्कैन और ये फटाक से कर लेता है, बट इट हेल्प्स अ लॉट यू टू थिंक एट द बैक ऑफ योर माइंड कि इसमें ये 3 चीजें मैं देख रहा हूँ, इसमें ये 4 चीजें देख रही है। वी आर इन अ हैबिट ऑफ गिविंग 4 और 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस, नहीं, जरूरत नहीं है। इफ एट द एंड ऑफ द हिस्ट्री यू नो दैट नो कहाँ से लीजन आ रहा है लगभग और क्या एज ग्रुप है, यू कैन कोन इट डाउन टू 3 to 4 थिंग्स, एंड एट द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन यू कैन कोन इट डाउन टू 1 or 2 थिंग्स। करके देखो थोड़ी देर, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि काफी अच्छी कोनिंग हो जाती है इससे। ठीक है, सिमिलरली अगर पीडियाट्रिक केसेस अभी तुम्हें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, सेम केस अगर पीडियाट्रिक्स में होता, सो अगेन विंस का प्रेजेंटेशन का एज डिफरेंट है, न्यूरोब्लास्टोमा का डिफरेंट है, इसका और बर्किट्स लिम्फोमा का डिफरेंट है। तो दैट एज ग्रुप हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कि अरे ये बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, मैं ये ऊपर रखूंगा, ये नीचे रखूंगा। तो ऑलवेज डू दैट फॉर कॉमन केसेस। सेम थिंग फिर नेक में लिम्फ नोड आ भी जाएगा, तो अगर 2nd 3rd डेकेड में आता तो क्या लाइकली चांसेस है, 3rd 4th में आता तो क्या है, 5th 6th में आता तो क्या है, दैट विल हेल्प यू डाउन टू कोन थिंग्स अप।
ठीक है, Yes, sir. चलो ज्यादा एग्जामिनेशन कर लो। Okay. Moving to general examination, patient is conscious, oriented to time, place, person, ECOG PS of 0, height of 167 centimeter, weight of 65 kg, BMI of 24.1 kg per meter square. Pulse is 86 beats per minute in right radial artery with adequate force, volume, tension. All peripheral pulses well felt. Blood pressure is 126 by 88 millimeters of mercury in right arm supine position. Respiratory rate of 20 cycles per minute. Thoracic abdominal with no obvious use of accessory muscles. No pallor, icterus, edema, or any other lymphadenopathy that could be palpable. Skin is normal, no any hyperpigmentation or other patches present. Coming to systemic examination, on per abdominal examination, on inspection, abdomen is flat, umbilicus is inverted. A globular swelling is seen in the central and the lower quadrant of the abdomen, about 10 by 10 centimeter in the size. Overlying skin looks normal. There are no scars, sinuses, dilated veins, and hernial orifices are normal. On palpation, findings of inspection are confirmed. There is no local rise of temperature, no tenderness, guarding, or rigidity. 15 by 15 centimeter globular mass is felt in the central quadrant of the abdomen, which extends into the lower abdomen and is firm in consistency, slightly mobile in horizontal and vertical directions, non-tender, with overlying skin free. All the margins are well felt and it moves with respiration. Liver and spleen are not palpable. No evidence of any ascites. Hernial orifices are normal. And testicular examination, right testis is not felt. Left testis is 3 by 3 centimeter in size, firm, non-tender. Cord is felt. Per rectal examination, no abnormality detected. So coming to percussion, no evidence of any ascites, and auscultation, normal bowel sounds are heard. Respiratory system, air entry is equal on both sides. Normal vesicular sounds heard. Central nervous system examination, no focal neurological deficit. Cardiovascular system, S1, S2 is heard. No evidence of any murmurs. So to finally put my summarize the case. So 26-year-old male with abdominal lump of 6 months duration and abdominal pain of 1 month duration with absent testis on the right side and normal testis on the left side. So I would like to rule out first testicular malignancy and then move ahead. अच्छा, 2-3 चीजें एग्जामिनेशन में। हाँ, एक तो तुमने स्क्रोटल एग्जामिनेशन का स्कार था या फिर वहां पे कोई स्कार था कि नहीं, ये सब बताना चाहिए था। ओके सर। नॉर्मली लोगों को अगर एब्सेंट टेस्टिस कहोगे, हो सकता है पेशेंट ने हिस्ट्री भी नहीं दी हो, तो एक बार वो बोलना ठीक रहता है कि स्क्रोटम के ऊपर कोई स्कार था या नहीं था। ओके दूसरा, अगर एब्सेंट टेस्टिस दिखते तो ये बोलना भी ठीक रहता है कि तुमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के ओरिफिसेस पे भी चेक किया था, वहां पे भी कोई स्वेलिंग नहीं है। ओके कि अनडिसेंडेड टेस्टिस कहीं वहां अटकी हुई है क्या, वो उसके लिए तो दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू टेल। दूसरा है कि जब तुम्हें अनडिसेंडेड टेस्टिस और पीछे जाओ, एब्डोमेन एग्जामिनेशन पे जाओ, देखो अभी ये 15 by 15 सेंटीमीटर का मास होता है ना, तब कभी मत बोलना कि एक बात याद रखना, अगर तुम्हें बहुत बड़ा मास पाल्पेबल हो रहा है ना, तो मोबाइल है वो बोलने की कोशिश कभी मत करना, ठीक है। इन जनरल मेरी ओपिनियन रहेगी, वो डेमोन्स्ट्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तीसरी बात ना, ये वैसे भी मोबाइल नहीं होगा प्रीतेश, जिस तरह से तुम्हारा ये गया है, मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू कंक्लूड दैट द रेट्रोपेरेंटल लिम्फ नोड्स बिकॉज ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। ओके तो उसमें रेट्रोपेरेंटल चीजें होती है ना, वो मोबाइल होती नहीं है। ओके तो कुछ अगर तुम मोबाइल कह रहे हो, मतलब तुम रेट्रोपेरेंटल स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जा रहे हो, ये याद रखना। ओके सो डू नॉट, चीजें सिंपल रखो एग्जाम में। देखो यू डोंट वांट योर एग्जाम टू गो कि रेट्रोपेरेंटल स्ट्रक्चर मोबाइल होता है नहीं होता है, ये कौन से डायरेक्शन में मूव होता है, दिस डीएम एग्जाम। तो ये ज्यादा इन सब चीजों में मत पढ़ते बैठो, ठीक है। क्या ठीक है, चलो तो तुम यहाँ पे पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस देना चाहोगे कि ये टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी हो सकती है और ये रेट्रोपेरेंटल लिम्फ नोड हो सकते हैं, यही देना चाहते हो ना कि कुछ और देना चाहते हो? यस सर। तो दूसरा एक चीज जो अच्छा होता है बोलना कि सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड देखा नहीं देखा, एक बार ना स्पेसिफिकली बोल दिया करो,
ठीक है. Right. रिमेम्बर योर एग्जामिनर विल बी टेकिंग एग्जाम्स ऑफ मल्टीपल पीपल, तो कुछ कुछ वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं वैसे, ब्रॉड लेटर्स में कुछ टाइप कर देता ताकि लोगों को दिखे, तो वैसे वैसे थोड़ा स्ट्रेस करके सुप्राक्लर को लिम्फ नोड नहीं था बोल दिया करो. ठीक है. Yes, sir. ओके. और इसकी फैमिली कंप्लीट है? हाँ सर, married since 6 years and 2 children. ठीक है, चलेगा. ठीक है. चलो अभी आगे क्या करो. अच्छा, और कोई डिफरेंशियल देना चाहोगे? टेस्टिस एब्सेंट है और ये रेट्रोपेनियल लिम्फ नोड्स है, 26 ईयर का है. और कोई डिफरेंशियल देना चाहोगे अगर पड़ी गया एग्जामिनर पूछने के लिए कि और कोई डिफरेंशियल हो सकता है क्या? कि अगर टेस्टिस नहीं है, अनडिसेंडेड टेस्टिस है, तो उसको हमेशा टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता उसको लाइफ में. तो वो पूछ भी सकता ना, क्यों बायोप्सी करा रहे हो, तुम तो श्योर हो ये जर्म सेल ट्यूमर ही है. तो ऐसा अगर इसकी अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस है मतलब बाकी के कैंसर नहीं होंगे ऐसे नहीं होता है ना. इट कैन Right. स्टिल बी, यू माइट बी सरप्राइज कि ये टेस्टिकुलर लिम्फोमा भी निकल सकता है. हालांकि ये एज नहीं है, एज ये होती है. यू मे बी सरप्राइज दैट ये पता चला आया हुआ रैप्डोमायोसार्कोमा निकल जाए. ठीक है. तो Okay. दिस प्रोबेबली इज अ वेरी लो ऑन कार्ड, बट यू ऑलवेज वुड लाइक टू गेट अ कंफर्मेशन. ठीक है. Right. Right, sir. हाँ, तो हमेशा कंफर्मेशन चाहिए. हाँ, चलो नेक्स्ट क्या Right. करोगे? So I would like to investigate the patient. I would like to do investigations for diagnosis and investigations for fitness for further therapy. डायग्नोसिस के Investigations. लिए क्या करोगे पहले बताओ. So diagnosis के लिए पहले तो I would like to do uh, uh, ultrasound of the testis, one, to look at the left testis, CT scan of the abdomen to localize the swelling, and biopsy of the swelling. बायोप्सी क्यों करोगे? मैं कह रहा हूँ ट्यूमर Tumor मार्कर markers, tumor markers. एचसीजी आ गया 5000 और अल्फा प्रोटीन आ गया 8000. तुम्हें चाहिए क्या बायोप्सी? No, no, sir. हाँ, तो क्यों नहीं बोल रहे हो ना कि मैं सबसे जो आसान चीजें वो Okay. पहले बोल दो ना कि Yes. मैं समझ रहा तुम्हारे यहाँ ट्यूमर मार्कर्स उतने रेज नहीं है. तुम पहले बोल दो ना कि मैं ट्यूमर मार्कर्स करके देख लूंगा. भाई जो सिंपल सी चीज तुम जो ओपीडी में करोगे, पहले ट्यूमर मार्कर्स करके देख. वो अगर अच्छे खासे रेज आ गया, तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है ना. Yes, sir. तो अभी मुझे बताओ, किसी सिचुएशन में टेस्टिकुलर कैंसर में अगर ट्यूमर मार्कर्स रेज होते हैं फिर भी बायोप्सी जाके करोगे? Tumor markers are raised. रेज फिर भी तुम जाके बायोप्सी करना चाहोगे? If they आई एम are, टॉकिंग अबाउट, देखो एक होता है कि आप पहले ही एक ऑर्किडेक्टमी करते हो ट्यूमर मार्कर्स रेज होने के बावजूद, और ऑर्किडेक्टमी बाद के ट्यूमर मार्कर्स देखते हो, वो रूटीनली आप करते हो. पर ऐसा जब बड़ा मास रहता है ना, तब आप मोस्ट लाइकली पहले कीमो दोगे अगर इसकी टेस्टिस होती भी तो. yes, sir. ठीक है. तो मैं इस स्पेसिफिक सिचुएशन में पूछ रहा हूँ, जब तुम्हारे रेज ट्यूमर मार्कर्स आए हैं, कोई सिचुएशन ऐसा तुम्हें पता है जिसमें तुम बायोप्सी करना पसंद करोगे? No, sir. मुझे भी नहीं पता है. नंदिनी, कोई ऐसा सिचुएशन होता है क्या, या अखिल भी है ना, जिसमें सस्पेक्टेड, हाँ चलो, सस्पेक्टेड जर्म सेल ट्यूमर है बट और ट्यूमर मार्कर्स अच्छे खासे रेज्ड है, आपको बायोप्सी करनी पड़ेगी? किसी और चीज चाहिए होती है क्या? नहीं सर, अगर ग्रॉसली रेज्ड है तो वी कैन अवॉइड बायोप्सी ऑल्सो, ऐसा कुछ. अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो दैट इज नॉर्मली तुम्हें फिर भी बायोप्सी मिल जाती है, क्योंकि मतलब तुम ऑर्किडेक्टमी लोग करते हैं ना, तो उस वजह से दिख जाती है, वरना जरूरत नहीं है. ओके. चलो तो आगे आगे बढ़ जाओ प्रीतेश. हाँ, तो ट्यूमर मार्कर्स तुम्हारे आ गए, LDH 420, अल्फा बीटा 0.79, बीटा एचजी 42.42. बाकी क्या आया? सीटी स्कैन वगैरह उन सब में क्या आया? हाँ, so CT scan will suggest you of a well-defined lobulated lesion in the central abdomen, 13 by 7 by 9 centimeter. Dilated right gonadal vein is seen on the inferior aspect of the lesion. Multiple left gonadal collateral veins are seen in the left lateral aspect of the lesion. Multiple aortocaval nodes seen below the renal hilum up to the bifurcation, largest 3.3 by 2.1 centimeter, and compressing the IVC and abutting the aorta at angle less than 180 degree, and rest of the lungs and other organs are normal. So they had labeled it as intra-abdominal testicular malignancy with retroperitoneal lymph nodes. Sir, image I could not get here because वो transfer नहीं हो पाया. कोई बात नहीं. तो तुमने थोरैक्स भी कर लिया है ना? हाँ सर, yes sir, thorax was normal. पक्का सुप्राक्लेव देख लिया नहीं है ना? हाँ सर, 100% नहीं है. ठीक है, चलेगा. ठीक है. फिर आगे क्या?
this was the अच्छा, biopsy which was done outside and reviewed at a hospital, and okay, which was high-grade malignant tumor with interspersed lymphocytic infiltrate. And on IHC, tumor cells are positive for D240, SAL4, c-KIT, and OCT3x4, and okay, suggestive of seminoma. वेरी गुड। अभी मुझे एक बात बताओ, ये सेमिनोमा का डायग्नोसिस देखने के बाद अगर मैं तुम्हें शुरुआत में बोलता ये सेमिनोमा होगा या नॉन सेमिनोमेटस होगा, ओके, तो Okay. तुम बेट पे किस पे लगाते? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने ट्यूमर मार्कर्स अब तक देखे नहीं है, ट्यूमर मार्कर्स देखने का ये तो क्लियर था कि ये मोस्ट लाइकली सेमिनोमा आने वाला है, तो Right. ट्यूमर मार्कर्स देखने का तो तुम सेमिनोमा बोलते हैं या नॉन सेमिनोमा बोलते हैं? Seminoma, sir. Intraabdominal germ cell tumor. Seminomas are more common as compared to non-seminomatous germ cell पर tumor. इसकी एज तो 20s में थी ना, सेमिनोमा Yes. तो 4th डेकेड में आता है ना, मतलब जो 30 to 40 के बीच में आता है ना, Yes, sir. तो 20s एज में आता तो तुमने क्यों नहीं सोचा था कि ये नॉन सेमिनोमेटस हो सकता है? So the incidence of intraabdominal, in cases of intraabdominal testis, the incidence of seminoma is more than NSGCT. एग्जैक्टली, ये आंसर देना है, सही आंसर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट क्या करोगे अभी इस पेशेंट के लिए? So we know the diagnosis. We will do tests for fitness. We'll do complete blood count. We'll see the hemoglobin total counts, platelet count. We'll see the renal functions. We'll कितना see. हीमोग्लोबिन है इसका? So hemoglobin is 12, sir. Total counts is 4.8. Platelet is 2 lakhs. हीमोग्लोबिन पता होना चाहिए टेस्टिकुलर कैंसर के केस में। Sorry, sir. क्यों चाहिए एचबी देखना चाहिए? तो हर केस में हम एचबी देखते ही है कीमो फिटनेस के लिए, और क्यों देखते हैं एचबी जब जर्म सेल ट्यूमर का केस होता है तब? Nutritional adequacy. I mean, हाँ बिल्कुल सही है, न्यूट्रिशन एडुकेसी भी देख रहे हो, और क्या देख रहे हो? देखो बाद में तुम ना इसकी बीपी के लिए डीएलसीओ भी करोगे ना, right, अगर sir. एचबी कम होता है तो उसको करेक्ट भी करना पड़ेगा ना, तो ये Okay. देखते ही हो, ये एग्जाम में फटाक से बोलने के लिए अच्छा लगता है, ओके, Yes, कि sir. मैं एचबी इसके लिए देख रहा हूँ, न्यूट्रिशन एडुकेशन देख रहा हूँ, और बाद में मुझे डीएलसीओ करना है, तो देन द एग्जामिनर नोज दैट यू आर थिंकिंग इट इन दैट रिस्पेक्ट, ठीक है। Yes, yes, sir. अभी तुम So, और क्या करोगे इसके लिए ट्रीटमेंट के so पहले? renal function test, liver function test, and nutritional workup. And for treatment purposes, I would like to do a PFT DLCO to look at the lung function if I'm planning bleomycin-based therapy. Other than that, PTA and echo ECG for baseline records of the cardiac status. अभी मुझे एक बात बताओ, इसका ये क्या करोगे, इसका सीमेन एनालिसिस करोगे कि नहीं करोगे? So semen analysis will ask for semen analysis and sperm banking if the patient is will give the option to him. You will give the option to him, अगर फैमिली कंप्लीट है वो नहीं कराना है तो अलग बात है, पर सीमेन एनालिसिस और स्पर्म बैंकिंग करके रखना मत भूलना, ठीक है? Yes, sir. नॉट इन दिस केस ओनली, मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ, keep this in mind for any patient who is below 40, हाँ, even if it turns out to be a buccal mucosa जो NACT के लिए जा रहा है, ओके, नेजोफेरिंग से जो इसके लिए जा रहा है, अगर पेशेंट बिलो 40 है और उसका फैमिली कंप्लीट नहीं है, मेक इट एन हैबिट ऑफ आस्किंग फॉर सीमन एनालिसिस एंड स्पर्म बैंकिंग, मेक इट अ हैबिट, ओके? Right, sir. ऑब्वियसली क्यूरेटिव केसेस में, पैलेटिव में नहीं, हाँ? Yes, sir. या ओके, अभी चलो, अभी आगे क्या करेंगे इसके साथ? So patient will after taking consent will plan for treatment. So he is seminoma. क्या होगा, रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन क्या होगा इसका? Sorry, sir. Good risk, sir. क्यों गुड रिस्क है? तो सेमिनोमा का रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन बताओ। So good and intermediate risk, sir. Intermediate is any only the only character in which intermediate risk is there is non-pulmonary visceral metastasis. करेक्ट। और स्टेज क्या होगी इसकी? Stage will be stage 2B, retroperitoneal lymph nodes multiple, and largest is 3.3 by 2.1 centimeter. So stage 2. ये रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन जो आपने बताया, ये कहाँ से आया था?
IGCCG group. कैसे निकाला था? So they evaluated patients. मतलब पूछ रहा हूँ यार, कैसे निकाला ये रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन आप बता रहे हो, ये कैसे आया था? So they evaluated. रिस्क स्ट्रेटिफाई किया. So they risk stratified the patients based on the outcomes as मतलब outcomes and factors which were correlating with the outcomes, and they divided the patients as per outcomes into good risk, intermediate risk, and poor risk for NSGCT. ओके ओके. अरे कैसे किया था पूछा है मैं कैसे किया था पूछा. क्या किया था उन्होंने? So पढ़ा नहीं है पेपर? किया था तो नहीं मतलब. ठीक है, कोई नहीं. मेरा सवाल उससे रिलेटेड था कि एक बार वो जाके, बहुत पुराना जेसीओ का पेपर है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है? द रीजन व्हाई आई वांट यू टू रीड दैट पेपर इज कि, और देखना कि सेमिनोवा में कोई और फैक्टर भी था क्या जो आया था. तो इट वाज एक्चुअली अ रिग्रेशन एनालिसिस, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस की गई थी देखने के लिए कि एक तो जो भी ऐसे रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन होता है ना, वो हमेशा दो तरीके से बनती है. एक होता है तुम्हारा डिस्कवरी सेट और एक होता है वैलिडेशन सेट. डिस्कवरी सेट पे आप देखते हो कि कौन से फैक्टर्स है जो जो सर्वाइवल इम्पैक्ट कर रहे हैं, और आप उसका वैलिडेशन सेट पे ये फैक्टर्स लगा के देखते हो कि वैसे ही हो रहा है कि नहीं. ओके. तो इसमें जब एक बार पढ़ना कि जो ये थे क्या कहते सेमिनोमा में, तुमने सही बताया, नॉन परमानेंट विजिबल मेट्स, कोई और फैक्टर आया था क्या? ओके ओके. जो उन्होंने इंक्लूड नहीं किया एंड वाले इसमें, ठीक है? यस सर. दूसरा एक सवाल पूछ लेता हूँ यार यहाँ पे, ना भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेते, खास करके तुम्हारे अगर ओल्डी टाइप के तो पेट सिटी करोगे इस पेशेंट का? So PET CT in initial evaluation phase is not does not have any additional benefit as compared to CECT thorax abdo-pelvis. In cases of after treatment, PET CT has some role in seminoma in to decide between whether to observe or to operate. Okay, fair enough. ठीक है, आगे क्या करोगे? So we would like to treat the patient with 3 cycles of, if the patient is fit for therapy, we'd like to treat the patient with 3 cycles bleomycin etoposide cisplatin therapy. Okay. ओके. अभी नहीं, इसका आपका गुड रिस्क आ गया ना, तो गुड रिस्क में आपका क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं? So we can give either 3 cycles BEP or 4 cycles of etoposide cisplatin. ओके. और कौन से बेसिस पे बता रहे हो ये? तुमने कहा ना 4 साइकिल्स बीपी, 3 साइकिल्स बीपी या 4 साइकिल्स जीपी, कौन से बेसिस पे बता रहे हो? So they had compared मतलब दोनों ऑप्शंस. I didn't get the question. मतलब हाँ, so my question is, आपने बोला इस पेशेंट को 4 साइकिल्स ईपी है देना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं 3 साइकिल्स बीपी देना चाहता हूँ. राइट. So how do you choose कि मैं 3 साइकिल ईपी दूं, 4 साइकिल ईपी दूंगा या 3 साइकिल बीपी दूंगा? So they had done studies, sir, which showed that the complete response rates with BEP were numerically higher as compared to 4 cycles of EP. However, the toxicity with 4 cycles of EP, hematological toxicities were more, and the 10-year survivals with both the regimens were almost not statistically significant is what the thing. Okay. और ये कौन सा स्टडी था? So this was ये जो है वो EORTC, I don't know the number sir, but EORTC स्टडी था. ओके. हाँ सर. fair enough. कितना % लोगों को CR हुआ था? So CR rates was 64 versus 44 64 versus 57% sir, in with 3 BEP and
4 EP, sir. Okay, so I'll give you one more hint. कितना % लोगों को एब्डोमिनल डिसेक्शन करने के बाद कंप्लीट सीआर हुआ था, और उसमें डिफरेंस था क्या पीओआरटीसी के स्टडी में? Okay, हाँ. So नहीं, so after doing, नहीं था, मतलब so नहीं, that was not, मतलब not there. I mean, नहीं था. Okay, so this was an EORTC study which is, देखो एक ना टेस्टिकुलर कैंसर कुछ क्लासिक स्टडीज होते हैं, वो तुम्हें आने चाहिए, ठीक है. okay, 419 पेशेंट की स्टडी थी ये, बीपी 3 साइकिल्स वर्सेस ईपी 4 साइकिल्स, ठीक है. okay. डोज का यूज हुई थी इटोपोसाइड की, पता है? 100 mg per meter पता square मुझे, for तुमने 5 बोली days. थी. जाके पढ़ो, 120 थी डोज इसमें. Okay, ओके, और ये और इसमें क्यों मैंने तुम्हें आईजीसीएसएस लिया था ना, तो जो इसमें जो पेशेंट लिए गए थे वो ईओआरटीसी स्कीमा से फेवरेबल लिस्ट थे. इनफैक्ट वेरी Okay. फेवरेबल लिस्ट लिया गया था. हम्म. सीआर रेट 97 वर्सेस 85% था, पी वैल्यू सिग्निफिकेंट था in favor of 3 cycles of BEP, but there was no difference in PFS and OS. Okay, और Okay. तुम्हारी पल्मोनरी और न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटीज बीईपी में ज्यादा हुई थी, ठीक है. Right. अभी मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा था कि ये फेवरेबल रिस्क है ना, हाँ सर. तो उसकी ये कितनी होती है? 5 ईयर पीएफएस क्या होता है, 5 ईयर सर्वाइवल क्या होता है आईजीसीएसएस के हिसाब से? So 5-year survival in good risk seminoma is 96 to 98%, sir. इतना नहीं है बेटा. 5 ईयर सर्वाइवल इज अराउंड 85 to 90% के बीच में आता है, ठीक है. और पीएफएस 80 to 85% के बीच में आता है, ठीक है. Okay. तो 9600 मत. अपडेटेड डेटा बता देता हूँ सर. हाँ बोलना. हाँ, 1997 का जो था जिसके बेसिस पे था, उसमें 5 ईयर पीएफएस 82% था. हाँ, 5 ईयर ओएस 86% था. यस सर. यस सर. और अभी जो अपडेट आया है 2020 में, अच्छा, उसमें अपडेटेड में 5 ईयर पीएफएस 89% हो गया है और 5 ईयर ओएस 95% हो गया. अच्छा, तो फिर तुम सही हो, ठीक है. क्योंकि मैंने तो गए 3-4 साल से पढ़ा हुआ नहीं है, मुझे पुराने डेटा याद है, ठीक है. चलो प्रीतेश, ये नया वाला डेटा भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जामिनर्स को ओल्ड डेटा ही पता रहेगा, तो तुम्हें पहले ओल्ड डेटा कोट करना है, फिर यदि कोई बताए तब तुम्हें कोट करना पड़ेगा, ना तो फिर यूजुअली ऐसे ही होगा कि सबको पुराना डेटा सबको पता रहेगा. क्योंकि पुराने पेपर है ना प्रीतेश, जिन्होंने 10 साल पहले मेडिकल ऑन्कोलॉजी की थी ना, टेस्टिकुलर कैंसर की केस आती थी एग्जाम में. हाँ, Okay. तो ये सारे ट्रायल्स जो बता रहा हूँ ना मैं, ये घोटे हुए रहते थे. So everyone will be knowing the classical trials, हाँ. Yes. Okay, so ये पूरा पढ़ के आना बाबा एग्जाम में. चलो आगे करो, पढ़ते हैं. क्या हो जाएगा अगर मान लो मैं कहता हूँ कार्बो दे देते सिस्प्लेटिन की जगह पे, दे सकते हैं? सर तो मतलब इटोपोसाइड कार्बोप्लाटिन वर्सेस इटोपोसाइड सिस्प्लेटिन वाला भी स्टडी हुआ था, which showed that cisplatin had better response rates and PFS as compared to carboplatin in first line. So और वो cisplatin would स्टडी be better. सेमिनोमा में हुआ था कि नॉन सेमिनोमा में हुआ था? वो स्टडी सेमिनोमा ओनली सर. पक्का? मैं चेक करता हूँ सर, बट एज फार सेमिनोमा. हाउएज का जो स्टडी एटलीस्ट मुझे याद है वो नॉन सेमिनोमा में था, ठीक है. Okay. And what you said is correct. CR rates were higher and DFS was higher. ठीक है. अभी मुझे एक बात बताओ कि ये बीईपी जो है, इसमें जो ब्लियोमाइसिन की टॉक्सिसिटी होती है, उसके कोई फैक्टर्स पता है तुम्हें? So which increase the risk of bleomycin toxicity? Older age, more than 50, more than 50, renal insufficiency. Sorry. तुम अभी कौन सा पेपर कोट कर रहे हो? ठीक है, चलो ओल्डर एज हो गया, ठीक है. Older age, renal insufficiency. ओके, कितना रीनल इंसफिशिएंसी? Less than मतलब creatine clearance less than. ठीक है, चलो ओल्डर एज, रीनल. आगे Older age, previous history of known case of COPD are at higher risk. Previous history of radiotherapy to the lungs. अभी mediastinal. सुन रितेश. हाँ सर. एक बंदा था ओ सेलेवन, जिसका ये डेटा आया था, उसके डेटा के हिसाब से एज ग्रेटर देन 40, स्टेज 4 डिजीज एट फर्स्ट ब्लियोमाइसिन डोज, GFR लेस देन 80,
और क्यूमुलेटिव ब्लियोमाइसिन डोज ग्रेटर देन 300,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, ये थे 4 रिस्क फैक्टर्स। ओके ओके। और जैसे जैसे रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जाते थे ना, वैसे वैसे रिस्क बढ़ जाती थी। अखिल, कुछ और नया डेटा आया है क्या ब्लियोमाइसिन लंग टॉक्सिसिटी के लिए, रिस्क फैक्टर्स के लिए? नहीं नया नहीं सर, वही स्टैंडर्ड है जो हाँ, आप तो वही ये तुम्हें पता यार। देख प्रीतेश, टेस्टिकुलर कैंसर में माफी नहीं होती है। हाँ, यस सर। लिम्फोमा, टेस्टिकुलर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसमें ये सब चीजों को तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। ये सारी बेसिक सी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, चलो अभी इसको तुमने 4 साइकिल ईपी देने थे, दे दिए। ओके, उसके बाद मान लो इस पेशेंट का ये हुआ, क्या कहते हैं, क्या करोगे? हो गया, खत्म हो गया 4 साइकिल ईपी। ऑर्किएक्टोमी एंड मतलब स्कैन्स के हिसाब से आरपीएलएनडी करना, लेकिन उस बेचारे का तो ऑर्किडेक्टमी ही नहीं है ना, क्या उसका वो तो अंदर है टेस्टिस, एब्डोमिनल। एब्डोमिनल टेस्टिस है ना, क्या करोगे? वो तो पूछा, इस केस में क्या करोगे बताओ? सो विल रिपीट अ स्कैन। ओके, वेरी गुड। देन ऑपरेट करना पड़ेगा सर, एब्डोमिनल ऑर्किडेक्टोमी। अरे मैं बता रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें सिचुएशन देता हूँ, ठीक है? एक सिचुएशन है, सीआर आ गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है? एक सिचुएशन है जहां 2 सेंटीमीटर का रेसिडुअल मास दिख रहा है, एक सिचुएशन है जहां 3 सेंटीमीटर का रेसिडुअल मास दिख रहा है, और एक सिचुएशन जहां 5 सेंटीमीटर का रेसिडुअल मास दिख रहा है। अभी इन सब में क्या क्या करेगा बता? 0, 2, 3 और 5। और मैंने सीटी स्कैन किया है। हाँ, राइट। तो सर, retroperitoneal mass is more than 3 centimeter, less than 3 centimeter can be observed, and those with more than 3 centimeter will do a PET scan. If there is uptake, we should do मतलब RPLND and remove. But जो abdominal testis है सर, that has to be removed. ठीक है, सही कह रहे हो। अभी मेरा नया दूसरा सवाल सुन लो, ठीक है? क्यों निकालते हैं एब्डोमिनल टेस्टिस? मतलब टेस्टिस क्यों निकालते हैं? ओके, टेस्टिस क्यों निकालते हैं? मतलब ऐसा क्या है कि टेस्टिस को निकालना ही निकालना है? रिकरेंस रेट हायर। अरे नहीं, मतलब क्या, क्यों निकालते हैं? प्रिंसिपल क्या है टेस्टिस निकालने का? देश कोई और है तुम्हारे? नंदिनी, यार एक ही केस है कि बहुत सारे केसेस है? नितेश, तुम्हारा अकेले का केस है ना? दिस नो मोर केस आफ्टर दिस ना? नो सर। So we'll give chance to some other people to answer also. राहुल, क्यों निकालना है टेस्टिस? सर रिकरेंस रेट, मतलब अरे प्रिंसिपल क्या है, टेस्टिस निकालने क्यों है? Why do you want to remove the testis? यार रिकरेंस रेट तो छोड़ो, मतलब प्रिंसिपल क्या है? और कोई और है? सर सेंचुरी साइट है। सॉरी, जोर से बोलो। हाँ, एक सेंचुरी साइट है। क्यों सेंचुरी साइट है? सर कीमोथेरेपी बैरियर रहता है, इसकी वजह से। क्या नाम है उस बैरियर का? अरे जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लड टेस्टिकुलर। ठीक है, ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर। अभी मुझे एक बात बताओ, ये ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर कौन से लेयर से बना हुआ रहता है? अरे बताओ ना, क्या है क्या? अरे ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर किससे बना हुआ रहता है? सर सर्टोली सेल्स। ओके, करेक्ट, इट्स एक्चुअली अ सर्टोली सेल बैरियर, करेक्ट है। तो फर्क पड़ता है कि ये टेस्टिस एब्डोमेन में है या स्क्रोटम में है इस बैरियर को?
नो सर। नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है। तो आपका टेस्टिस कहीं पे भी हो, ये बैरियर हमेशा रहेगा। ओके, सो करनी चाहिए। ओके, समझ में आया ना प्रीतेश? Yes, Because sir. the sanctuary site, the answer should be it's a sanctuary site because of blood testis barrier. अभी ये टर्म यूज नहीं होती, एक्चुअली सर्कुलेटरी सेल बैरियर कहते हैं, बट दैट्स ओके। तुम्हारे एग्जामिनर्स को ब्लड टेस्टिस बैरियर ही पता होगा। ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है, एंड दिस बैरियर कीमोथेरेपी वहां जाती नहीं, ऐसी भावना है, इस कारण से हम उसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं। तो चलो लेट्स से दैट ये पेशेंट है प्रीतेश, Yes, और sir. ट्यूमर वाज मोर देन 4 सेंटीमीटर, और पेट सीटी में अपटेक भी आया। ओके, Yes, but sir. the radiologist has told you that this residual is plastered to the aorta and intra IVC. प्लास्टर मतलब समझता है ना, शीट जैसा है, शीट जैसा। Yes, sir. ऐसा होता है सेमिनोमा में। Yes. This is very common in seminomas. Post treatment it will be a sheet like one. तो और वो तुम्हारा सर्जन कह रहा है यार मैं इसमें ऑपरेट नहीं कर सकता, क्या करूँ? So, if you cannot operate, and uptake is there on PET scan, we will. बताया हो ना। So, we'll go for salvage regimen, sir. With ओके, कुछ रेडिएशन वगैरह देना नहीं चाहोगे? हाँ, कोई और मोडेलिटी नहीं काम करती क्या? radiation to the site. Okay. तो लोग देते हैं इस सिचुएशन में रेडिएशन टू द साइट। ओके, मैं अगर एग्जामिनर हूं तो तुम्हारा दूसरा आंसर भी मान लूंगा, क्योंकि उसका एविडेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव एविडेंस है जो रॉयल मार्जन से आया हुआ है। ओके, सो वी गो बैक कि ये पेशेंट तुम्हारे पास ओपीडी में पहले दिन है। हाँ, वी आर नाउ गोइंग बैक, और तुमने ये सारा चीज किया। मुझे एक बात बताओ, इसका G6 PD क्यों नहीं भेजा? अभी मतलब on the first day. हाँ, फर्स्ट डे इसका G6 PD क्यों नहीं भेजा? और भेजना चाहिए था, नहीं भेजना चाहिए था? लॉजिकल है, इलॉजिकल है? Ifosfamide based, so we are not planning तुम as. तो EP प्लान कर रहे हो ना बेटा? Yes, sir. तो मुझे जरा बताओ, सॉलिड ट्यूमर में ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर्स बताओ। Tumor lysis syndrome. हाँ बताओ। Chemosensitive tumor, large size, मतलब more than 5 centimeter. हाँ, तो अभी ये फिट होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो ये होता है ना फिट? Yes, sir. हाँ, तो लार्ज साइज है ना ये तुम्हारा जो 15 centimeter. Yes. 15 सेंटीमीटर तो लार्ज साइज हो गया। सेंसिटिव Yes, है? Yes, sir. सेंसिटिव है, तो क्या रिस्क हो गई इसकी? High risk for tumor lysis, sir. तो भेजना चाहिए था कि नहीं भेजना चाहिए था? Yes, sir. तो ये याद रखा करो ना कि जब ऐसा कोई भी लार्ज ट्यूमर दिखता है, सेंसिटिव दिखता है, तो वन ऑफ द थिंग व्हिच अगेन यू शुड टेल इज कि तुम G6 PD इसके लिए भेजोगे क्यों? ताकि अगर रास्पबेरी का यूज करना पड़ा तो, एंड यू वुड टेक प्रिकॉशंस इन दिस फर्स्ट साइकिल्स कि ट्यूमर लाइसिस ना हो जाए। तो ट्यूमर लाइसिस के लिए क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? So we keep the hydration to 3 to 4 liters per day. Avoid potassium containing fluids. Increase. Give febuxostat and you give fossil to keep in the initial cycle so that there is no hyperkalemia or hyperphosphatemia. And hydration बराबर रखना है. And prephase, if the mass is big and if you are contemplating tumor lysis, prephase dose should be given. ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, Yes. ट्यूमर लाइसिस से क्राइटेरिया आते हैं तुम्हें? Yes, sir. बता दो। So, percent. Sir, uric acid more than 7.5 or
यूरिक एसिड 8 है, 8 ग्राम पर डीएल है, 8 मिलीग्राम, सॉरी ग्राम क्या कह रहा हूँ, 8 मिलीग्राम पर डीएल है। Creatinine, basically, ये either laboratory more than 7. sir. देख एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, द वे आई यूज्ड टू रिमेम्बर। यूरिक एसिड 8 है, ओके, हाइपोकैल्सीमिया का जो है वो 7 है, हाइपरकैलीमिया का 6 है, और हाइपरफॉस्फेमिया का 4.5 है, ठीक है। इस तरह से याद रखना, 8, 7, 6, 4.5, ओके। Right, sir. वो जाके पूरे मिलीग्राम डीएल से, जहां तक मुझे याद है सारे मिलीग्राम पर डीएल है, बस पोटेशियम जो है वो मिलीमोल प्लस लीटर में है, ओके। Okay, तो sir. ये इस तरह से याद रख के रखना बाबा। और जो क्रिएटिनिन और ये सब कह रहे हो ना, वो एक्यूट किडनी इंजरी में आ जाता है, तो वो क्लिनिकल हो जाता है, हाँ, दैट डजंट रिमेन एज लैबोरेटरी टीएलएस, ओके। हाँ, तो अभी जब बताओ तो पहले लैब टीएलएस और क्लिनिकल टीएलएस ऐसे अलग करके बताना है। तो लैब टीएलएस जैसे सर ने बताया वो, फिर क्लिनिकल टीएस क्रिएट प्लस वो कार्डियक अरिथमिया और ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ कि इस पेशेंट को अगर तुम ईपी दे रहे हो और तुम चाहते हो कि ईपी देना, इसमें और क्या प्रिकॉशन दोगे, क्या क्या सपोर्टिव कर दोगे पेशेंट को? एक तो तुमने ट्यूमर लाइसिस के लिए ले लिया ये प्रिकॉशन, और क्या दोगे? चलो उसके पहले एक बात बताओ, तुमने यूरिन अल्कलाइजेशन वगैरह किया था क्या इस पेशेंट का देते वक्त कीमो? अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ सर ट्रीटमेंट। तुम करोगे कि नहीं, वो हम क्या करेंगे वो छोड़ दे। यूरिन अल्कलाइजेशन करना मतलब यस। अल्कलाइजेशन करोगे कि नहीं करोगे? करोगे तो हाँ तो क्यों करूंगा, ना तो क्यों नहीं करूंगा। So tumor alkalinization करेंगे सर, it reduces the risk of renal injury, I mean urine alkalinization. देखो अगर तुम रायजूरिक एसिड नहीं देने वाले हो ना, या फिर तुम्हें लगता है कि ये पेशेंट, आजकल कॉस्ट क्या है रायजूरिक एसिड की? 7,000 per vial सर। ये क्या करना चाहिए? देखो एक तो पहले बात तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। यस सर। बंदा है स्कॉट हावर्ड करके, ठीक है, या जो इसका है सेंट जूड का बंदा है, ठीक है। उसके क्योर फॉर किड्स पे पूरे लेक्चर्स होंगे ट्यूमर लाइसिस के 2 या 3, और वही बंदा जो एनजीएम में आर्टिकल लिखता रहता है, वो पूरे जाके सुनोगे, ठीक है। यस सर। यूरिक करने से कैसे, अगर तुम रायजूरिक एसिड देते हो तो किस तरह से यूरिक एसिड का सोल्यूबिलिटी तो बढ़ जाता है, बट कैल्शियम फॉस्फेट का सोल्यूबिलिटी घट जाता है, ओके। ओके। टैकल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो कैसे यूरिन अल्कलाइन करने का कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि यूरिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट, इन सब की पीके क्या है, पीके मतलब सॉल्युबिलिटी क्या है, ओके। देखो ये क्लासिक केसेस जब भी लेंगे ना, लिम्फोमा ये वाले, इसमें ये ट्यूमर लाइसिस पे डिस्कशन जाएगी, ओके। एंड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग्स। और यस सर। वेरी बैड इंप्रेशन अगर तुम्हें ट्यूमर लाइसिस के सारे डिटेल्स पता नहीं होते, ओके। यस सर। चलो अभी नेक्स्ट बताओ, इसका एंटीएमेटिक क्या दोगे? So his cisplatin based therapy we are planning, so high risk for high risk for MSS. पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या दोगे? So aprepitant, granisetron, basically aprepitant for 3 days, granisetron for 3 days, Dexa, so for 3 days. एप्रिपिटेंट पहले 3 दिन में देना ज्यादा अच्छा होता है कि चौथे, पांचवें, छठे दिन देना अच्छा होता है? First 3 days. भावना नहीं पूछ रहा हूँ मैं, स्टडी पूछ रहा हूँ। Study, I don't know sir. Read. पढ़ना। There is a specific study done in जो एकाध दूसरा ही जो इसका स्टडी हुआ है ना, क्या कहते हैं, मल्टी डे रेजिमेंट्स में काफी कम स्टडीज हुई है, ओके। सो फ्यू स्टडीज व्हिच हैव बीन डन आर डन इन टेस्टिकुलर कैंसर ओनली, ठीक है, जिसमें कुछ लोगों ने 7 दिन का एप्रीपेटेंट का शेड्यूल भी बनाया हुआ है, ओके। ओके सर। तो जरा पढ़ोगे एप्रीपेटेंट का वो, ठीक है। यस सर। ठीक है। और जो दूसरा मैंने जो तुम्हें बताया ना, 4th डे से 7th डे देने का, वो भी किया हुआ है, ओके।
पर जो 4th Okay. डे टू 7th डे दिया था तब 1st डे टू 3rd डे नहीं दिया था, मतलब एक आर्म में 4th डे टू 7th डे ही दिया था, दूसरे आर्म में नहीं दिया था बिल्कुल। ठीक है, Right, तो sir. एप्लीकेटेंट ऐड करना चाहिए, इससे CRX बढ़ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी मान लो इसको पकड़ लेते हैं लास्ट 5 मिनट का डिस्कशन के, ये NSGCT था। Okay. ओके, तो इसकी Okay. रिस्क क्या होती, वही होती कि कुछ और होती? So NSGCT, ट्यूमर मार्कर्स तो नॉर्मल, आई मीन ट्यूमर मार्कर्स तो पोस्ट ऑर्किडेक्टमी वाले चाहिए, सो सेम इट वुड हैव बीन रिस्क नहीं बोल, मतलब ट्यूमर मार्कर्स इफ दे आर प्री ऑर्किडेक्टमी, सो नॉट से द रिस्क सर, बट सेम रिस्क, इट विल नॉट बी। बिल्कुल सही है, सेम, इतना डर क्यों रहे हो? ठीक है, अभी मुझे बात बताओ, ये पेशेंट को का फॉलोअप कैसे करोगे? सेमिनोमा है, सेमिनोमा है, ट्रीटमेंट कर दिया तुमने, अच्छा रिस्पांस आ गया, तुमने एब्डोमिनल डायसेक्शन भी कर दी, ये भी कर दी, और नहीं उसके पहले वो कर लेते हैं, एब्डोमिनल डायसेक्शन कर दी और आया कि कोई वायबल ट्यूमर नहीं है, तो क्या Okay. करोगे? ऑब्जर्व एंड फॉलो अप सर। आया कि रेसिडुअल वायबल ट्यूमर है, तो क्या करोगे? So if there is residual viable tumor, we'll give 2 cycles of कुछ पूछते हो कि कितना रेसिडुअल वायबल ट्यूमर है, कितना परसेंट है? ये मैं माना बोला कि 2% ही रेसिडुअल वायबल ट्यूमर है, राइट। एग्जैक्ट कितना परसेंट होगा नहीं पता सर, कितने से ऊपर रहा तो ट्रीटमेंट देना। अखिल मैं भी भूल गया ये। ऐसा सर स्पेसिफिक परसेंटेज आई आल्सो डोंट रिमेम्बर सर। नन्नी मैम ऐसा कुछ है क्या स्पेसिफिक परसेंटेज? नॉन सेमिनोमेटस में तो 15 है पक्का, इसमें मुझे याद नहीं है इसलिए। अच्छा सर, चेक करता हूँ सर। मैं भी चेक करके बताता हूँ तुम्हें कितने। ठीक है, ठीक है, चलो अभी मुझे एक बात बताओ, इस पेशेंट का फॉलोअप कैसे, इसका आगे फिर से टेस्टिकुलर कैंसर होने का रिस्क है इस पेशेंट को? Contralateral testis has a risk of testicular cancer. Yes, the other testis is at higher risk for testicular cancer. तो इसकी फॉलोअप कैसे करोगे पेशेंट की? Hello. हाँ, फॉलोअप कैसे करोगे? So follow-up will be every 3 monthly for the first 2 years, because most of the recurrences occur in 2 years. So on follow-up there will be history, physical examination, tumor markers will be done, scanning to be done every 6 monthly. क्यों करोगे इसके? मतलब इसके तो बीटा एचसीसी थोड़ा सा रेस था ना, तो बाकी के करने की जरूरत नहीं है ना। Okay. नहीं, Okay. Okay. And करता है ना, क्यों बिना मतलब क्यों करेंगे ना? right. बोलो। And ultrasound of the, I mean, for the first 2 years, CT scan every 3 monthly, history and examination every 3 monthly, and ऑपोजिट टेस्टिस के लिए कुछ करोगे? ultrasound of the opposite testis. Yes. ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, इसको मेटाबॉलिक रिस्क सिंड्रोम्स होने की कितनी रिस्क रहती है? So at 10 years, the risk is around 30%. 30% of the patients will have metabolic syndrome in patients who are treated for testicular cancer. ओके, फेयर इनफ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये काफी प्रीतेश, अभी विल स्टॉप हियर बट यू नीड टू रीड अ लॉट। हाँ, Yes, sir. चलो एक सवाल पूछ ही लेता हूँ। चलो, अगर रिलैप्स 2 साल बाद हुआ, उसको क्या कहते हैं, और उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है कि गंदा है? So relapse after 2 years is prognosis is good, and प्रीतेश, तो तुम्हें ना ये एक चीज बताता हूँ। पहले तो पहला स्टेटमेंट तुम्हारा सही था कि इंसिडेंस ऑफ लेट रिलैप्स कहते हैं आफ्टर 2 इयर्स जो होते हैं, ठीक है, वो सेमिनोमा में कम 1.2% होता है। ठीक है, Okay. वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल फॉर एनएसजीटी, बट ये याद रखना
रिलैप्स आफ्टर 2 इयर्स जब होता है ना, इस सिचुएशन में तुम्हारा एग्जामिनर सुनना चाहता है कि रिलैप्स आफ्टर 2 ईयर होता है वो लेट रिलैप्स होता है एंड द प्रोग्नोसिस इज नॉट दैट गुड। ओके ओके, अब सवाल था मेरा कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें टेराटोमा रहते हैं, इसलिए कहा वो मोर एप्लीकेबल एनएचजीसीटी में। ओके ओके सर। तो ये कंसेप्ट लेट रिलैप्स का भी पूरा पढ़ के रखो बाबा, ये 100% पूछा जाएगा अगर तुम्हें टेस्टिकुलर कैंसर की केस होती है। ऐसी केस तुम एग्जाम में देते हो तो थोड़ा अच्छे मार्क्स मिलना मुश्किल है। हाँ प्रीतेश, यस सर, थोड़ा यस पढ़ाई सर, करो इसमें। हाँ राइट। हाँ, ओके चलो अखिल तुम्हें कुछ पूछना है पूछ लो यार, मेरी तरफ से खत्म हो गया। तो सर वो आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन वो भी था ना, अर्ली में सिस्प्लेटिन सेंसिटिव, अर्ली रिलैप्स में सिस्प्लेटिन सेंसिटिविटी क्यों रहती है, जबकि बाकी यूजुअली क्या होता है कि 6 मंथ से कम है तो सिस्प्लेटिन रेजिस्टेंस मानते हैं, बट हियर इन टेस्टिकुलर कैंसर अर्ली रिलैप्स इज आल्सो सिस्प्लेटिन सेंसिटिव। हाँ ये भी सही सवाल है यार, ये भी एक क्लासिक सवाल है रितेश। ओके, I'll have to read sir. ये डेविटा में ही लाइन है और सर ने ही हम लोग को रिमाइंड किया था तो हम लोग ने ध्यान से देखा था, तो ये भी देखोगे। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस वो भी एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, राइट। ठीक है, यस सर। और जो जेनेटिक होता है उसमें कौन से क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होती है, कुछ आइडिया है? जेनेटिक आइसोक्रोम 12p, आइसोक्रोम 12p, हाँ, Yes. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, करेक्ट। ठीक है सर। रितेश डेविटा तो एटलीस्ट पूरी पढ़ लेना, हाँ अच्छी तरह से। डेविटा में Yes, सब sir. दिया हुआ है ये। ओके, यस सर। हाँ वहाँ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें बताता हूँ, एक हिमेटोलॉजी क्लिनिक सब नॉर्थ अमेरिका की, एक 3-4 साल पहले, 3-4 नहीं हो रहेंगे अभी, 6-7 साल पहले एक इशू निकली थी पूरी टेस्टिकुलर कैंसर पे, ठीक है। तो Okay. हाँ तो एक बार वो देख लेना, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, मतलब तब तक का। उसके बाद भी देखना कोई इशू वगैरह निकली है क्या ऐसे टेस्टिकुलर कैंसर में यार, कुछ तुम्हें ये नहीं किया जाएगा। हाँ मतलब यू वोंट बी शोन एनी सिंपैथी। ओके, तो ये पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ के रखो और ये पकड़ के रखना, एग्जाम के बाद तुम्हारे एटलीस्ट 2 या 3 तो टेस्टिकुलर कैंसर के केस घूम रहे होंगे। इसका मतलब लगभग हर दूसरे या तीसरे जन को मिलने वाली है ये केस, आइदर लॉन्ग केस या शॉर्ट केस। ओके, राइट राइट। तो ये टॉपिक बड़ा अच्छी तरीके से तैयार करके आना, ठीक है। चलो, यस सर। हैव अ गुड डे।